Namaskar, Unit 1, Day 5. We will start with the revision of yesterday's topic, circular flow of income. Circular flow of income is the flow of goods and services and income across the different sectors of an economy. Then injections and leakages variables. Injections means addition, means those variables which increase the production activities in an economy, and leakage means withdrawal, therefore those variables which discourage or decreases the production activities in an economy. Three phases of circular flow of income. First, production phase, in which producers produce goods and services. Second, distribution or income generation phase, in which household sector receive factor payments or income from producer sector. And last, third phase is expenditure phase, in which household sector spend their income on goods and services produced by producer sector. Next question is, differentiate between real flow and monetary flow of income. Real flow means the flow of goods and services across the two sectors of an economy, and monetary flow is the flow of money or income across the producer sector and household sector of an economy. Next question, true false. First, export is injection variable. Yes, it is true, because export increases the production activity in an economy. Export means the demand or sale of our good in abroad. If the export increases, means demand of our goods increases in rest of the world, which increases our producers to produce more. Second, tax is injection variable. No, it is not an injection variable. False, because tax discourages the production activities in an economy. Now, today's topic is domestic or economic territory of a country. This domestic or economic territory is something different from the political or geographical territory of a country. Domestic territory means the area administered by a government in which persons, goods and capital circulate or move freely. और वो एरिया जहाँ पर हमारी सरकार की चलती है उसे डोमेस्टिक टेरिटरी कहा जाता है। यह एरिया हमारी कंट्री के अंदर भी होता है,
और दूसरे देश के अंदर भी हो सकता है। इट इंक्लूड्स पॉलिटिकल फ्रंटियर इंक्लूडिंग टेरिटोरियल वाटर्स एंड एयर स्पेस। इसका अर्थ है हमारी तीनों तरह की सीमाएं, धरातल पर, समुद्र में और आकाश में। यहाँ पर टेरिटोरियल वाटर्स का मीनिंग है समुद्री सीमा, और ये है हमारे सी शोर से, समुद्र के किनारे से लेकर 22 किलोमीटर तक होती है। और एयर स्पेस का अर्थ है हमारी जो राजनीतिक सीमा है धरातल पर और समुद्र में, उसके ऊपर वाला एयर स्पेस। सेकंड, embassies, consulates, military bases of the country located abroad। हमारे देश की एम्बेसीज, कॉन्सुलेट्स और मिलिट्री बेसिज जो कि दूसरे देशों में स्थित है, लेकिन वहां पर हमारी सरकार की चलती है, इसलिए वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट होंगे। थर्ड, शिप्स, एयरक्राफ्ट्स etc. operated by the residents of the country between two or more countries। इसका मीनिंग है कि इंडियन शिप्स और इंडियन एयरलाइंस जो हम दूसरे देशों के बीच रन करते हैं, ऑपरेट करते हैं, वो हमारी ही डोमेस्टिक टेरिटरी का हिस्सा होंगे, क्योंकि वहां पर हमारी सरकार के रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो किया जाता है। डोमेस्टिक टेरिटरी का कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, क्योंकि इस कंसेप्ट से हम डोमेस्टिक इनकम के कंसेप्ट को कोरिलेट करेंगे। Now, what are included in domestic territory and what are not? Inside the domestic territory of India, first Indian Embassy in London, जैसा कि हमने अभी सीखा था कि इंडियन एम्बेसी चाहे किसी भी कंट्री में हो, वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का ही पार्ट होगी। तो इंडियन एम्बेसी इन लंदन इज इनसाइड द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया। यूएस एम्बेसी इन न्यू दिल्ली, यूएस एम्बेसी चाहे फिजिकली न्यू दिल्ली में है, लेकिन वहां पर भारत सरकार की नहीं चलती, वो एरिया भारत सरकार के द्वारा एडमिनिस्ट्रेट नहीं किया जाता, इसलिए यूएस एम्बेसी हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं है। देन ए बिल्डिंग रेंटेड आउट बाय ए रशियन टू इंडियन एम्बेसी इन रशिया, मीन्स वो बिल्डिंग जो इंडियन एम्बेसी को किराए पर दी गई है, वो भारत की आर्थिक सीमा में आएगी, इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में आएगी। ए बिल्डिंग रेंटेड आउट बाय एन इंडियन टू पाकिस्तान एम्बेसी इन इंडिया, एक भारतीय की बिल्डिंग है जो उसने पाकिस्तानी एम्बेसी को किराए पर दे रखी है, तो उस बिल्डिंग में पाकिस्तान सरकार
की चलेगी, ना कि भारत सरकार की। इसलिए वो बिल्डिंग हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट न होकर पाकिस्तान की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट होगी। अब एक क्वेश्चन यहां पर है, व्हाट इज दिस एम्बेसी? एम्बेसी means the diplomatic office of a country in another country to protect the rights of its citizens and to discuss the sensitive issues between the two nations regarding trade, war, social issues, economic issues, etc. And this diplomatic office of embassy is situated in the capital of other country, and the head of embassy is known as ambassador. हिंदी में बात करें तो एम्बेसी को दूतावास कहा जाता है, एम्बेसडर को राजदूत कहा जाता है। थर्ड, पैसेंजर प्लेन्स ऑपरेटेड बाय एयर इंडिया बिटवीन इंडिया एंड इंग्लैंड। ये हवाई जहाज है एयर इंडिया का, भारत का है, जो इंडिया और इंग्लैंड के बीच चलता है। तो इस एयर इंडिया के जहाज में हमारी गवर्नमेंट का एडमिनिस्ट्रेशन होगा, इसलिए एयर इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट होगा। पैसेंजर प्लेन्स ऑपरेटेड बाय ब्रिटिश एयरवेज बिटवीन इंडिया एंड इंग्लैंड। चाहे ये जहाज इंडिया में आता है, लेकिन इस ब्रिटिश एयरवेज के जहाज में ब्रिटिश गवर्नमेंट का एडमिनिस्ट्रेशन होगा, देयरफॉर इट इज नॉट ए पार्ट ऑफ इंडियन डोमेस्टिक टेरिटरी। नेक्स्ट, ब्रांच ऑफ ए सिटी बैंक। सिटी बैंक इज ए फॉरेन बैंक इन इंडिया। सिटी बैंक एक फॉरेन बैंक है, यूएसए का है, वो इंडिया में सिचुएटेड है, तो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट होगा, क्योंकि भारत में सिटी बैंक को हमारे सरकार के रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना होगा। इसी तरह से ब्रांच ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इन यूएसए, एसबीआई इंडियन बैंक है लेकिन सिचुएटेड यूएसए में है, तो उस एसबीआई की ब्रांच को यूएसए के रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ेगा, तो वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं होगा। इसी तरह से पांचवा पॉइंट, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस मीन्स फॉरेन इंडस्ट्री। कोई भी फॉरेन इंडस्ट्री, कोई भी फॉरेन कंपनी जो इंडिया में सिचुएटेड है, उसको इंडिया के रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ेगा, इंडियन गवर्नमेंट के एडमिनिस्ट्रेशन को अडॉप्ट करना पड़ेगा, तो वो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट होगी। ऑफिस ऑफ टाटा इंडस्ट्रीज इन यूएसए। कोई भी इंडियन इंडस्ट्री अगर दूसरे देश में है तो उसको वहां की गवर्नमेंट के एडमिनिस्ट्रेशन को अडॉप्ट करना पड़ेगा, और वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं होगी। नाउ द नेक्स्ट कंसेप्ट इज नॉर्मल रेजिडेंट, सामान्य निवासी। नॉर्मल रेजिडेंट means a person or an institution who normally resides। normally resides का मीनिंग है not less than 1 year continuously।
in a country and whose economic interest lies in that country. इकोनॉमिक इंटरेस्ट का मीनिंग है कि वो यहीं पर कमाता है, यहीं पर खर्चता है और यहीं पर एक्यूमुलेट करता है। नॉर्मल रेजिडेंट का कंसेप्ट सिटीजनशिप के कंसेप्ट से थोड़ा सा अलग है। सिटीजनशिप बाय बर्थ भी हो सकती है, बाय लीगल प्रोसीजर भी हो सकती है। तो नॉर्मल रेजिडेंट में क्या क्या इंक्लूड होगा? फर्स्ट, सिटीजन्स ऑफ आवर कंट्री, हमारे देश के नागरिक जो नॉर्मली यहां पर ही रहते हैं और उनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी इंडिया में ही है। सिटीजन्स ऑफ अदर कंट्रीज, दूसरे देशों के वो नागरिक जो हमारी कंट्री में एक या एक से ज्यादा साल से रह रहे हैं एंड हुज इकोनॉमिक इंटरेस्ट लाइज इन आवर कंट्री। यहां पर हम उन नागरिकों को छोड़ देंगे जो स्टडीज और मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए आए हैं। एंड थर्ड, citizens of our country working in international organizations or foreign embassies located in our country, हमारे देश के वो नागरिक जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में या फॉरेन एम्बेसीज में काम करते हैं। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस लाइक वर्ल्ड बैंक, IMF, WHO एटसेट्रा। अगर इनके कोई ऑफिस हमारे देश में है और उसमें एक भारतीय काम करता है तो वो हमारा नॉर्मल रेजिडेंट माना जाएगा। इसी तरह अगर कोई इंडियन अमेरिकन एम्बेसी में काम करता है जो कि इंडिया में है तो उस इंडियन को इंडिया का ही नॉर्मल रेजिडेंट माना जाएगा। उस एम्बेसी को डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया नहीं माना जाएगा, लेकिन उस इंडियन को नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ इंडिया माना जाएगा। नाउ नेक्स्ट स्लाइड, who are normal resident of India and who are not. First, Indian working in Japanese embassy in India, जो हमने अभी किया कि एक जापानीज एम्बेसी है जो इंडिया में है, उसमें अगर कोई इंडियन काम करता है तो हमारा नॉर्मल रेजिडेंट होगा। देन रशियन वर्किंग इन इंडियन एम्बेसी इन रशिया, इसी तरह से अगर कोई इंडियन एम्बेसी रशिया में है और उसमें एक रशियन काम करता है तो वो रशियन नॉर्मल रेजिडेंट होगा रशिया का। यहां पर मैं एक बात और बताना चाहूंगा, जापानीज एम्बेसी इन इंडिया इज ए पार्ट ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ Japan and Indian embassy in Russia is a part of domestic territory of India. Second, Indian ambassador in the UK, UK में इंडियन एम्बेसडर है। इंडियन एम्बेसडर कौन होगा? वहां पर जो इंडियन एम्बेसी है उसका हेड, वो हमारा ही नॉर्मल रेजिडेंट होगा। एम्बेसडर इन इंडिया फ्रॉम जापान, इंडिया में जो जापानीज एम्बेसी है उसका जो एम्बेसडर होगा वो इंडिया का नॉर्मल रेजिडेंट नहीं होगा,
जापान का होगा। देन इंडियन एम्प्लॉयड इन द ऑफिस ऑफ WHO लोकेटेड इन इंडिया। WHO का एक ऑफिस है इंडिया में, अगर उसमें कोई इंडियन काम करता है तो हमारा वो नॉर्मल रेजिडेंट होगा। फॉरेन वर्किंग इन IMF ऑफिस लोकेटेड इन इंडिया। लेकिन अगर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो कि इंडिया में है उसमें फॉरेनर काम करता है तो वो हमारा नॉर्मल रेजिडेंट नहीं होगा। फोर्थ, इंडियन टूरिस्ट विजिटिंग एब्रोड। इंडियन टूरिस्ट जो दूसरे देशों में घूमने के लिए गए हैं वो हमारे देश के ही सामान्य नागरिक बने रहेंगे। फॉरेन टूरिस्ट विजिटिंग इंडिया, वो फॉरेनर्स जो हमारे देश में विजिटिंग पर आए हैं वो हमारे नॉर्मल रेजिडेंट नहीं होंगे। फिफ्थ, इंडियन स्टूडेंट्स स्टडिंग इन ऑस्ट्रेलिया आर नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ आवर कंट्री। African students studying in Delhi University, they are not the resident of our country. Next, branch of Indian Bank located in England. अगर कोई भारतीय बैंक दूसरे देश में है तो वो हमारा ही नॉर्मल रेजिडेंट होगा। इसी तरह से अगर कोई विदेशी बैंक की ब्रांच भारत में है तो वो हमारा नॉर्मल रेजिडेंट नहीं होगा। यही नियम लागू होगा इंडस्ट्रीज के ऊपर। ब्रांच ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज इन USA, चाहे ये रिलायंस इंडस्ट्री की ब्रांच USA में है लेकिन रिलायंस एक इंडियन इंडस्ट्री है इसलिए वो इंडिया की ही नॉर्मल रेजिडेंट होगी। ब्रांच ऑफ फॉरेन कंपनी लाइक LG, फोर्ड, सैमसंग एटसेट्रा इन इंडिया, ये फॉरेन कंपनीज सिचुएटेड इंडिया में है लेकिन नॉर्मल रेजिडेंट हमारी कंट्री की नहीं होंगी। रीजन, बैंक और इंडस्ट्रीज आर द नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ दैट नेशन वेयर दे आर ओरिजिनली एंड लीगली कॉन्स्टिट्यूटेड। कोई भी बैंक या इंडस्ट्री उस देश की सामान्य निवासी होगी जहां पर उसकी कानूनन स्थापना हुई है। Now the time for recapitulation. Who is known as normal resident of a country? Normal resident means a person who normally resides in a country and whose economic interest lies in that country. Filling the blanks. First, the branch of Bank of America located in India falls under the domestic territory of Bank of America located in India, falls under the domestic territory of India. Indian working in Chinese embassy in India. इंडियन कौन काम कर रहा है? इंडियन कहाँ काम कर रहा है? चाइनीज एम्बेसी में, जो कहाँ पर है? इंडिया के अंदर है। तो नॉर्मल रेजिडेंट किसका होगा? इंडिया का ही होगा। नेक्स्ट,
ट्रू फॉल्स? ब्रांच ऑफ जनरल मोटर्स इन इंडिया, जनरल मोटर्स यूएसए बेस्ड कंपनी है, उसकी ब्रांच है इंडिया में, फॉल्स अंडर द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया। ट्रू। ब्रांच ऑफ फोर्ड कंपनी in India is treated as normal resident of India. No. Ford company is USA based company. ये भारतीय कंपनी नहीं है, इसकी स्थापना यूएसए में हुई थी, इसकी एक सिर्फ ब्रांच है भारत में, तो ये भारत की सामान्य निवासी न होकर यूएसए की नॉर्मल रेजिडेंट होगी। It's all for today's lecture. Thank you.